Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Clear enough? One of you please confirm. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। You are clear. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह। All right, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. We shall continue with the golden stories of Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. And हम लोग जो है अभी उनके how he was in regards to the statesmanship and regards to his military operations, कैसे वो forward जा रहे थे उसके बारे में हम लोग discuss कर रहे हैं. Alhamdulillah, yesterday we talked about Yemen and we talked about certain threats in the nearby area and how he dealt with it. आगे continue करते हैं. Struggle against the apostates. Having helped end apostasy in Amman, Ikrama radiallahu anhu, as per Abu Bakr's instruction, headed towards Mahra. Mahra is a name of a place. अभी अमान के अंदर जो है वो मुर्तद के जो मामला थे उसको सॉल्व करते हुए फिर इकरामा जो थे, इकरामा रदियल्लाहु अन्हु, वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के इंस्ट्रक्शन से एक जगह है जिसका नाम है महरा, वहां पर proceed किए. He commanded 700 horsemen and volunteers, fighters from Amman's tribes. In Mahara, Ikrama radiallahu anhu found two opposing groups of apostates fighting for supremacy over the region. The smaller of the two groups was headed by a man named Shikrit, and the most powerful of the two was led by a man named Al-Musbih. अब इकरामा जब महरा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो ग्रुप्स हैं मुर्तद के जो फाइट कर रहे हैं पावर के लिए, और वो एक ग्रुप जो छोटा ग्रुप है वो उसको जो लीड कर रहा था उस शख्स का नाम था शिक्रित, और जो बड़ा ग्रुप है उसको लीड कर रहा था उसका नाम है अल-मुस्बिह. इकरामा रदियल्लाहु अन्हु invited both groups to embrace Islam, but it was only the followers of Shikrit that answered the call. अब as usual ये सीधा वॉर नहीं डिक्लेयर करते थे, पहले ये इन लोगों को इनवाइट करते थे, दावा करते थे दीन का कि if they agree to follow or to accept Islam, फिर इनके साथ जो है वो रहम का मामला हो जाएगा और पीस का मामला हो जाएगा. लेकिन if they oppose and reject the idea of embracing Islam, फिर जाके जंग वो उनके अगेंस्ट करते थे. तो ये शिक्रित और मुस्बी में से शिक्रित ने एक्सेप्ट कर लिया, मुस्बी और उसके फॉलोअर्स ने रिजेक्ट किया, बिलीविंग दैट दे कुड नॉट बी डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर साइज. अब उनको अपनी तादाद पर एक घमंड था, एक भरोसा था, एक गुरूर था कि वी आर ह्यूज इन नंबर्स, तो हमें हराना इनको मुश्किल होगा, और उनको अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे बहुत ज्यादा भरोसा था. So they were of course deluded in their assessment of the situation. Ikrama radiallahu anhu, his men and the members of the Shikrit group attacked al-Musbi and his followers. अब ये हुआ कि already मुस्लिम की आर्मी भी strong थी, so इक्रिमा और फिर उसके बाद शिक्रित also joined him, और वो लोगों ने मुस्बी और उसके फॉलोअर्स को अटैक किया. The Muslim forces achieved a quick and decisive victory. यानी अभी देखिए आपके उसने अपनी असेसमेंट इतनी गलत की. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने आप में अपनी खुशफहमी में इतने ज्यादा मगन रहते हैं और इतना ज्यादा वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं. दे थिंक दे आर पावरफुल, दे थिंक दे आर टू स्ट्रॉन्ग, बट उस गलत फहमी में क्या होता है अक्सर दे आर ब्लाइंडेड, एंड व्हेन दे आर ब्लाइंडेड तो उनको क्या होता है, उनको हार का मजा चखना पड़ता है. सिमिलरली यही हुआ उसके साथ, मुस्बी के साथ, कि उसको करारी हार मिली. Okay, the Muslims forces achieved a quick and a decisive victory, and al-Musbi as well as a number of his followers were killed. अब मुस्बी का भी कत्ल हो गया, उसके followers का भी कत्ल हो गया. इकरामा रदियल्लाहु अन्हु then stayed in the area for a while, organizing their political affairs and overseeing the restoration of the civil order. All the people of the area embraced Islam. Alhamdulillah. अब इनका again आप देखिए modus operandi क्या होती थी. पहले तो ये जाते first when they used to approach, what they will do, वो दावा करेंगे इस्लाम का. They will ask them to embrace Islam. अगर उन्होंने accept किया well and fine, then उनके लिए खैर है. अगर उन्होंने reject किया then they plan to fight against them. जब fight होती है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें victory हो गए, फिर क्या उनका तर्ज अमल होता था, immediately वो माल गनीमत लपेटे और निकल गए, ऐसा नहीं होता था. The leaders will stay there. उधर रहकर वो ऑर्गेनाइज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर और पूरा ओवरसी करेंगे कि स्टेट के कार्यवाही, सिविल ऑर्डर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए. फिर उसके बाद जो है वो वहां से रवाना होते हैं. जब सब एवरीथिंग स्टार्ट्स रोलिंग इन अ नॉर्मल फैशन, फिर वो वहां से निकलते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने वहां के एरिया में इस्लाम एम्ब्रेस किया. अब आप देखिए इससे आपको आइडिया लगेगा, लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड. और ये जो गलत मनगढ़ंत इस्लामोफोबिया की जो अफवाहें होती हैं कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, तो आप देखें ये दैट इज नॉट द केस.
अब हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप, हाउ वाज द स्ट्रेटजी, हाउ द लीडर्स हु वर सो वाइज एंड सो नॉलेजेबल, कितना पेशेंटली और कितना वाइजली वो एक एक कदम रखते थे और फिर जाकर अपने पर फैलाते थे. एंड स्लोली एंड इवेंचुअली यू वुड सी दैट अ हैंडफुल ऑफ सहाबाज अल्हम्दुलिल्लाह कुड रूल द 3/4 ऑफ द ग्लोब. अब जाके हमें उनकी मोडस ऑपरेंडी पता चल रही है स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि कितनी कैलकुलेटिव मूव्स रहते थे. जो लीडर्स थे वो एक्चुअल लीडर्स कहलाने के लायक थे, बिकॉज दे वर सो केयरिंग, दे वर सो कंसिडरेट. सिर्फ रैंडमली हैपहैजर्ड मैनर में अपनी एक दो जीत के ऊपर घमंड करके इधर उधर लोगों को ट्रैम्पल करना, दैट वाज नॉट द वे ऑफ एक्शन, द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ दिस लीडर्स. वो बिल्कुल सोच समझ के एक दूसरे से सलाह मशवरा करके, अल्लाह से मदद मांग के, अल्लाह की हम्द सना करके एक एक स्टेप रखते थे. सो इसमें हमारे लिए भी बहुत सारे लेसन है कि whenever we take up any task, whenever we take up any projects in our hand, be it professional or personal, हमारा जो तर्ज अमल होना चाहिए वो भी इसी प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए. द स्टेप्स that these people used to follow if we want to taste success bi'idhnillah. Ikrama's stay in Mahra, although fruitful, was short-lived. He soon received a letter from Abu Bakr radiallahu anhu, ordering him to join forces with Al-Muhajir ibn Abi Umayyah radiallahu anhu and his men, who were coming towards him from Sana. With Al-Muhajir's army, Ikrama radiallahu anhu and his men were to head towards Kinda in Hadramaut. Ab, from time and again, we could see how Abu Bakr radiallahu anhu used to place and plan his leaders. वो देखते थे कहाँ पर फोर्स की जरूरत है, कहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, कहाँ से विड्रॉ करना है, कहाँ पर लोगों को डिप्लॉय करना है. All this like a true army person, like a true leader of the army, the true caliph of the Muslim nation. उन्होंने इकरामा को महरा से बुलाया और फिर उनको कहा कि he has to join forces. मुहाजिर इब्न अबी उमैया को ज्वाइन करना है, जो कि सना के तरफ से जाते हुए मुहाजिर की आर्मी को ज्वाइन करके किधर जा रहे हैं, वो हद्रमौत में जा रहे हैं. दे आर गोइंग टुवर्ड्स किंदा. किंदा इज अ place named near Hadramaut, and Hadramaut is again an important station. Ikrama left Mahra and camped in Abin, where he waited for Muhajir. From the time he arrived in Abin until the time of Muhajir's arrival, Ikrama radiallahu anhu made wonderful use of the time. ये चीज को है हम लोगों को जिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना है. All these people, इनका अगर if they are not on an important mission of fighting or giving dawa or restoring the peace in a place, उनको अगर वेटिंग पीरियड भी होता था तो उसमें वो अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करते थे. अब देखते हैं कि how did Ikrama made the wonderful use of his time. He united the people of An-Nakha and Hamir and made sure they remained steadfast Muslims. उन्होंने क्या किया? अगेन दो इलाकों का नाम है यहाँ पर, अन-नखा एंड हमीर. वहां के लोगों को इकट्ठा किया और उनको दीन के ऊपर इस्तकामत रहे, तो उस तरीके से उनको दावा, ट्रेनिंग, नॉलेज इंपार्ट करना शुरू की. ही ऑल्सो स्ट्रोव टू सीक आउट एंड इरेडिकेट द रेमिनेंट्स ऑफ अल-अस्वद फॉलोअर्स. जैसे हमने कल डिस्कस किया था अल-अस्वद के बारे में, जो अपने आप को फॉल्स प्रोफेट डिक्लेयर किया हुआ था, एंड उसको कैसी मौत के घाट उतारा गया था थ्रू अ बिलीविंग वुमेन. Yesterday we had a wonderful session discussing of Al-Aswad's failure. तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पर कुछ और भी थे जो कि Al-Aswad के फॉलोअर्स थे और कुछ रेमिनेंट्स बाकी थे, तो उसको भी वो निकालने के लिए कामयाब हुए. कौन? इकरामा. Two primary targets of Ikrama were Amr ibn Madi Karib and Qais ibn Makshu. यानी दो जो उनके टारगेट थे from the among the followers of Al-Aswad, उसमें दो थे, Amr ibn Madi Karib and Qais ibn Makshu. The latter having fled from Sana following his attempt to kill Fairuz radiallahu anhu. If you remember Qais, yesterday हमने Qais के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि एक जनरल था of Al-Aswad की आर्मी का, and he was planning and plotting against Fairuz. Now Fairuz is the one जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी और वो हदीस में उनको blessed होने का डिक्लेयर किया था, and Fairuz was the one actually who killed Al-Aswad. तो ये जो है ये अभी भी यानी उसी टाइप की प्लॉटिंग में लगा हुआ रहता है. एंड देन इकरामा वाज टारगेटिंग हिम, बट अगेन व्हाट हैपेंड, वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर बेस ऑफ ऑपरेशंस. तो कैस जो है वो दर बदर भटक रहा था कि वो कहीं पर तो मुकीम हो जाए और फिर उसके बाद वो अपना बेस ऑफ ऑपरेशंस वहां से बनाए. As for Amr ibn Madi Karib, he had joined other former followers of Al-Aswad at or nearby Lahaj. Lahaj एक इलाका था, आपने देखा था कि कल असवद में हमने 3-4 इलाके डिस्कस किए थे. One of the इलाका was Lahaj. तो
इब्न मादी करीब जो है वो वहां लहज के इलाके में उसका अल असवद का फॉलोवर थे. When Ikrama radiallahu anhu arrived in the region, Qais and Amr joined forces and prepared to attack Ikrama and his men. अब आप देखेंगे जो कैस कैरेक्टर है ना, ये कहीं से भी सुधरने वाला नजर नहीं आता है. कहीं पे भी उसको छोड़ा जाए, ये टाइम दर टाइम यानी उसकी जो सोच है वो इस्लाम को और मुस्लिम को हर्ट करने वाली ही है. तो अगेन इसने अभी यहाँ क्या किया, पहले फैरूज के पीछे था, अब इकरामा के पीछे आ गया. उसने अमर और कैस दोनों जॉइंट फोर्स करके इकरामा और उनके आदमियों को अटैक करने की प्लानिंग करने लगे. बट बिफोर दे कुड डू दैट दे हैड अ बिटर आर्गुमेंट एंड पार्टेड कंपनी ऑन बैड टर्म्स. लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो लोग अलग हो गए. Then when Muhajir radiallahu anhu arrived with his men, Amr in awe of the combined strength of the two Muslim armies quickly surrendered. अमर जो था इसमें थोड़ा सा समझदार नजर आ रहा था. उसने देखा कि ये जो दो आर्मीज मुहाजिर एंड इकरामा की जब ज्वाइन होके एक बहुत यूनिफाइड स्ट्रेंथ हो गई है तो उसने इमीडिएटली सरेंडर कर लिया. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स कैस डिड द सेम. अब थोड़े टाइम के बाद कैस ने रियलाइज किया कि ही डजंट हैव अ चांस टू बी विक्टोरियस. उसने भी अपने घुटने टेक दिए एंड ही आल्सो सरेंडर. Muhajir had the two men tied up and sent them to Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu censured them, after which both men apologized for their mistakes, repented, openly declared their re-entry into the fold of Islam, and vowed to remain loyal and obedient to Abu Bakr's government. Having witnessed a change in the two men, Abu Bakr radiallahu anhu set them free. अब ये दोनों मुजरिमों को पकड़ के इकरामा ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा. जब उनके पास इनको पहुंचाया गया तो इन्होंने जो है अपोलोजाइज किया, अपनी मिस्टेक्स को तस्लीम की और फिर उसके बाद उन्होंने फॉरगिवनेस सीख की और दीन में शामिल हो गए और इरादा किया कि इस्लाम में ईमानदारी से उसको फॉलो करेंगे. जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि ये दोनों चेंज नजर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन पे से चार्ज हटा के उनको बाइज्जत बरी कर दिया. आई होप कैस रिमेन्स लाइक दैट. आगे की स्टोरीज में हमें पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद दिस टू गाइस. Last of the 11 armies. Of the 11 armies that Abu Bakr radiallahu anhu sent out to fight against the apostates. अब आप देखें 1, 2, 3 नहीं, 11 battalions, 11 army is fighting against मुर्तद. वो लोग जो दीन को, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुस्लिम्स पर जुल्म कर रहे हैं, 11 बटालियन को मैनेज कर रहे हैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. I stress on these points to let you know why is he the most deserving caliph after Nabi sallallahu alaihi wasallam और कौन सी क्वालिटीज हैं. यानी आप देखें ये छोटे मोटे टास्क नहीं है, these are the biggest tasks, बट ये इतने बड़े बड़े टास्क और इतने मुश्किल मरहलों को ज्वाइन करते हुए भी इनका जो बिहेवियर और जो इनका कंडक्ट होता था, इनका जो हुस्न इखलाक होता था, उसमें कुछ फर्क नहीं आता. हम लोगों के पास अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाए और थोड़ा सा काम और परेशानी आ जाए तो सडनली हमारा जो प्रेशर होता है और हमारी जबान होती है और हमारा इखलाक होता है वो पता नहीं आसमान को छू रहा होता है. वी कैन नॉट कंटेन प्रेशर, वी कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस. दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन. कोई हमारे घर में मेहमान आ जाए, कोई पार्टी हो, कोई इवेंट हो, 10-12 लोगों को मैनेज करना हो तो वी आर डन. एंड हियर they are managing the most difficult and the important crucial task. लेकिन उनके अंदर वो इतना तहम्मुल, they were so composed that they could absorb the stress, they could take the pressures and then work and think straight. May Allah make us among those. The last to leave Al-Madinah was the army of Al-Muhajir ibn Abu Umayyah, which was accompanied by a special unit of men from the Muhajirun and the Ansar. अब ये 11 आर्मीज गई थी. जो आखिर थी वो अल-मुहाजिर इब्न अबू उमैया की थी और ये स्पेशल यूनिट थी which comprised of Muhajiruns and Ansar. As al-Muhajir marched towards enemy territories, various people joined his army. So for instance, when he passed through Makkah, Khalid ibn Asid, brother of Makkah's governor, Attab ibn Asid, joined up. And when he marched towards At-Taif, Abdul Rahman ibn Abul As radiallahu anhu and a number of other men also volunteered. Others included Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Ukasha ibn Thawr, Firwa ibn Misak al-Muradi and Masruq al-Aqi. अब ये सिर्फ जैसे जैसे उनकी मार्च कर रही थी आर्मी, lot of people from those areas joined the army. We don't have to remember these names, I'm just running through them. तो अलग अलग गवर्नर्स, अलग अलग प्रोविंसेस में उनके साथ लोग ज्वाइन होते गए. मक्का से चंद लोग ज्वाइन हुए, ताइफ से चंद लोग ज्वाइन हुए. Arriving in Najran, Muhajir broke his army into 2 units. The first was to search out and destroy the former followers of Al-Aswad, and Muhajir was in charge of this unit. The mission of the second unit, headed by Al-Muhajir's brother Abdullah, was to rid Tihama of any remaining apostate fighters. अब जैसे ही वो नजरान is the name of a place, पहुंचे, मुहाजिर ने क्या किया, अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में
ब्रेक कर दिया। एक जो था वो अल अस्वद के फॉलोअर्स को ढूंढ के उनको कत्ल करने वाले थे, और दूसरा जो था यूनिट वो मुहाजिर के ब्रदर अब्दुल्ला लीड कर रहे थे, और वो जो तिहामा थे अनदर अपोस्टेट, उनके जो रेमिनेंट्स है या फॉलोअर्स हैं उनको फिनिश करने के लिए अपने आदमियों को लेकर पहुंचे। Earlier, having spent time in Sana'a, Muhajir wrote a letter to Abu Bakr radiallahu anhu informing about his activities and the situation in the region. He also indicated that he was awaiting further instructions from Abu Bakr radiallahu anhu. अब आप देखें, another thing for us to understand and to copy or replicate, कम्युनिकेशन, जिसको मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि उधर पहुंचने के बाद व्हाट ही डिड, इमीडिएटली मुहाजिर उन्होंने लेटर लिखा, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को बताया कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटीज उनकी चल रही है, इन्फॉर्म कर दिए व्हाट इज द करंट हैपनिंग। उसके बाद ही इज रिक्वेस्टिंग हिम कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिया जाए, आगे की कार्यवाही क्या करना है। कम्युनिकेशन इज द की। अराउंड द सेम टाइम, Muad ibn Jabal radiallahu anhu and the rest of the governors of Yemen that had been appointed by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, with the exception of Ziyad ibn Lubayd radiallahu anhu, wrote to Abu Bakr radiallahu anhu asking permission to return to Al-Madinah. Abu Bakr radiallahu anhu replied, giving them the choice to return to Al-Madinah. However, it was their duty to appoint appropriate persons to govern their districts during their absence. Every single governor opted to return to Al-Madinah. अभी इसी टाइम पे मुआद इब्न जबाल जो थे और जो रेस्ट ऑफ द गवर्नर्स जो थे यमन के, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किए थे, एक्सेप्ट जियाद इब्न लुबैद। जियाद इब्न लुबैद ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को लेटर लिखा और परमिशन उनसे मांग रहे थे कि वो मदीना में रिटर्न हो, और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको चॉइस दिया कि आपको इफ यू वांट टू रिटर्न टू अल मदीना इट्स ओके, लेकिन अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट करके आ जाएं ताकि जो काम है वो स्मूथली चले एंड इट डजंट गेट अफेक्टेड। हर सिंगल गवर्नर को मदीने में रिटर्न होना था। As for Muhajir, he received orders to join up with Ikrama radiallahu anhu and travel to Kinda in Hadramaut to help Ziyad ibn Lubayd, who was in a serious trouble. अब मुहाजिर को क्या ऑर्डर्स मिले थे कि उनको इकरामा को ज्वाइन करना है, किंदा में जाना है, हद्रमौत में जाना है, जहां पर जियाद इब्न लुबैद को इश्यूज थे। It was the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam who first appointed Ziyad radiallahu anhu to be his governor of Kinda in Hadramaut. When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died, Abu Bakr radiallahu anhu reappointed Ziyad. Ziyad radiallahu anhu was a resolute and stern leader. His sternness resulted in Harisa ibn Suraqa rebelling against him, which is not to say that Harisa was in any way right to do so. अब जियाद जो थे उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको रीअपॉइंट किया, और वो जो थे ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग और स्टर्न थे, थोड़े से सख्त लीडर थे। उनकी ये सख्ती की वजह से हारिसा इब्न सुराका जो था वो थोड़ा रिबेल करने शुरू किए। ये होता है अक्सर, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट आल्सो, कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट्स, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट कैरेक्टर। कुछ जो है वो ऑर्डर्स को स्ट्रेट समझ लेते हैं और दे डोंट माइंड फॉलोइंग द लीडर। कुछ जो होते हैं उनको चाहिए कि भाई बड़ा नरमी से, बड़ा थोड़ा स्वीट टॉक किया जाए और तभी उनको बात समझ में आती है। तो हारिसा जो थे, ही वाज वन ऑफ द पर्संस जिसको स्टर्न या बहुत अपराइट स्टेटमेंट्स रूड लगते थे, तो उनको जो है ये जियाद रदियल्लाहु अन्हु के स्टर्ननेस कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी, और इसीलिए वो थोड़ा रिबेलियस हो गए। हालांकि ये गलत बात है, बिकॉज फॉलोइंग द लीडर is one of the duties of Muslims. The conflict began, as conflicts usually do, with a simple matter. As he was distributing charity among his people, Ziyad radiallahu anhu mistakenly gave the wrong camel to a young resident of Kinda. When the young man demanded that Ziyad radiallahu anhu replace the camel with another, Ziyad radiallahu anhu outrightly refused his request. The young man went to the local leader, Harisa ibn Suraqa, and asked for his help. Harisa went to Ziyad radiallahu anhu on behalf of the young man and asked him to replace the camel. But Ziyad radiallahu anhu still refused. Harisa was furious and tense, and standoff took place between the followers of the two men. A battle ensued and Harisa and his men were defeated. All four of the former kings of Kinda were killed during the conflict. अब आप देखिए कितनी छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया, एंड सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गुस्सा। नो वंडर गुस्सा इज द सिनोनिमल ऑफ इब्लीस या शैतान, हम कहें शैतान का एक दूसरा रूप है। गुस्सा हराम एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से करार दिया गया हुआ है, इसलिए गुस्से को जो है ना बहुत यानी ये एक ऐसी मुसीबत लाएगी आपके लिए। अगर वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल जायजेंटिक बन के आपके सामने आ जाएगी। तो गुस्से को जो है ना पी जाएं, गुस्से को जो है ना थूक दें, गुस्से को जो है खत्म कर दें। एंड विद द हदीथ वी कैन फाइंड लॉट ऑफ सॉल्यूशन। मसलन इफ यू एवर गेट एंग्री, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, of course there is a hadith behind that. उसके बाद second hadith solution says, अगर आप जिस किसी भी position में, if you are standing sit down, if you are sitting lie down, एक ग्लास पानी पी लीजिए। Just go away from that situation, वो place, that location. Try to divert your mind.
start reciting durud. Yani these are the tips that you can follow to control your anger, because गुस्से में बोली हुई बात आप लाइफ टाइम तक रिग्रेट करेंगे, because that time you are not speaking. शैतान is working and controlling your brain and you are spitting out venom. आप अपने मुंह से जहर, कौड़े जहर दे रहे होते हैं, जिससे कि परमानेंट स्कार्स हो सकते हैं, परमानेंट रिलेशनशिप खराब हो सकती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें. एंड रियल स्ट्रेंथ वाला आदमी वही है जो गुस्से में अटैक करे, वो नहीं, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करे वो है. एंड सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो लोग अपने माइंड को ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ क्राइसिस एंड ट्रॉमा कंट्रोल करते हैं ना, दे आर द रियल स्ट्रॉन्ग पीपल. सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू. कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट जो आपको गुस्सा दिलाता है, उससे डाइवर्ट हो जाइए और अपने ब्रेन को ऐसा फाइन ट्यून करिए कि आप गुस्से में कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसे एक्शन या कोई ऐसे डिसीजन ना लें जिससे कि आपको पछताना पड़े. इनफैक्ट देयर इज अ कोट आल्सो ऑन दैट कि गुस्से में कही बात या खुशी में किए हुए वादे अक्सर गलत होते हैं. So don't ever make promises when you're way too happy, and don't ever decide on something when you're way too angry, because ये दोनों decisions जो हैं ये emotional decisions हैं. इसमें ना तो कोई logic होगा, and later on in the future you will have to regret over it. So always be sound, and गुस्से में आप कोई गलत सलत काम ना कर बैठे. May Allah protect us. आमीन या रब. So ये एक छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. जियाद रदियल्लाहु अन्हु was distributing. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. या फरीन. या गुस्से के ऊपर एक कुछ याद आया था मुझे. क्या मैं बोल सकती हूँ? शेयर प्लीज गो अहेड. ये एक हदीस है या किस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे हुए थे. हदीस. या तो यानी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को एक शख्स बहुत भला बुरा कह रहा था, तो उसके ऊपर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खामोश थे. तो जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कुछ बोलना शुरू किए तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु फरमाए कि आपने क्यों उठकर चले गए, जब यानी मैं खामोश था तो आप मेरे साथ थे और मुस्कुरा भी रहे थे हल्की सी, लेकिन जब मैं बोलने लगा तो आप उठकर चले गए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खामोश थे तब एक फरिश्ता तुम्हारे लिए लड़ रहा था, यानी डिफेंड कर रहा था, और जब तुमने शुरू किए बोलना तो फरिश्ता हटके शैतान ने उस जगह ले ली. तो जहाँ शैतान होगा वहां पर मैं नहीं बैठ सकता. तो अगर ऐड कर लो कुछ, अगर मेरे से कुछ ऊपर नीचे हो. नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों ने ये बुक में हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में ये हदीस को डिस्कस किया हुआ है. एंड एग्जैक्टली व्हाटएवर यू सेड वाज करेक्ट कि जब हम नहीं बोल रहे होते हैं या व्हेन वी आर अब्सॉर्बिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग, कोई अगर हमको सामने से आके भला बुरा कह भी रहा है, एंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन आपके बिहाफ पे एंजल्स आर फाइटिंग एंड डिफेंडिंग यू. बट द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, लाइक सिमिलर जैसे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने वो रिपीट करने शुरू किए सेंटेंस, तो शैतान आके बैठ गया. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट अपसेट, एंड it was evident from his facial expression, and he walked out. He said कि अब शैतान आ गया तो I cannot sit in the same place. So this is a very clear, जज़ाकल्लाह खैर for reminding, but we had done this in the previous, if you all remember, जिसने attend किया है they would remember this, कि गुस्से को लेकर कितना मामला है कि हम लोगों को as a believer, एज ए मुस्लिम्स, हमारा जो तर्ज अमल है वो क्या होना चाहिए. हमें गुस्से को एब्जॉर्ब करना है, पीना है, और सुकून से, तहम्मुल से जो है वो डिसीजंस लेना है और अपने आप को कंट्रोल रखना है. अपनी जबान से, अपने हाथ से किसी को भी हर्ट नहीं करना है. ठीक है. और दुआ करें. There are many people, like अभी recently there was a question, in fact I'll share it in the group also. One of the sisters had asked how to deal with someone जो कि हमेशा गुस्सा रहता है. मसलन it could be anyone, it could be a spouse who's normally agitated, it could be your boss, it could be your sibling, it could be anybody around you जो अक्सर बिना वजह के गुस्सा होते हैं और भली बुरी बातें आपसे करते हैं, ताने तिशने तनकीद वगैरह. तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है उसका पूरा सोल्यूशन है. इंशाल्लाह आई विल फॉरवर्ड इट इन द ग्रुप टुडे. और यही है कि यस वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, कंट्रोल आवर टंग्स एंड थॉट्स एंड एक्शंस, एंड इंशाल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी. तो ये जो किस्सा था कि जियाद जो है वो ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द
चैरिटी। तो उन्होंने एक रॉन्ग कैमल दे दिया, एक यंग रेसिडेंट था, किंदा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, तो उसको उन्होंने रॉन्ग कैमल दे दिया। अब जब ये जो छोटा लड़का था ये वापस आया जियाद के पास मांगने के लिए कि मुझे रिप्लेस कर दें इस कैमल को, तो उन्होंने उसको स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो वो जो यंग आदमी था वो कहाँ गया, वो लीडर के पास गया, अपने लोकल लीडर था हारिसा इब्न सुराका। जब हारिसा इब्न सुराका से उसने मदद मांगी तो वो पहुंचे जियाद रदियल्लाहु अन्हु के पास कि भाई ये इसका जो है वो आप रिप्लेस कर दें। तो अगेन जियाद रदियल्लाहु अन्हु ने रिफ्यूज किया। इस पर वो बहुत गुस्सा हो गए। कौन? हारिसा। आप नोट करते जाएं कि कहां पर, वेयर डिड इट वेंट रॉन्ग। अब हारिसा जब गुस्सा हो गए, टेंस्ड हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उनके और उनके फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई होने से यानी बहुत खराबियां हो गई, क्योंकि हारिसा के ऑफकोर्स आदमी जो थे वो डिफीट हो गए, लेकिन ऑल द 4 ऑफ द फॉर्मर किंग्स ऑफ किंदा वर किल्ड। दे वर किल्ड। एक छोटे से मैटर पर, एक छोटे से गुस्से के ऊपर क्या हो गया, 4 किंग किंदा के जो थे वो मारे गए। जियाद रदियल्लाहु अन्हु imprisoned a number of हारिसा's follower। अब हारिसा के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनको जेल हो गई, एंड पर्सनली took part in the process of transporting them to al-Madina। अब ऑफ कोर्स उनको भी एक दिल में कहते हैं ना कि रिवेंज या खुन्नस आ रही है, तो जियाद ने क्या किया, उनको पर्सनली ट्रांसपोर्ट करवाए मदीना में। On the way, however, the prisoners came across Al-Ashad ibn Qais and pleaded for the help, mainly out of the sense of tribal loyalty. Al-Ashad mobilized the support of many followers and attacked Ziyad radiallahu anhu and his fellow Muslims। अब आप देखिए domino effect, the chain reaction of one single anger, यानी हारिसा के एक गुस्सा होने से नुकसान की चेन बनती जा रही है। The consequences that's happening, सीक्वेंस में चलते जा रहा है। उधर उन्होंने गुस्सा किया, उधर 4 किंग हलाक हो गए, इसके फॉलोअर्स मारे गए, उनको पकड़ लिया गया, उनको भी जेल में डाला जा रहा है। ऑन द वे ये जो प्रिजनर्स थे, इन्होंने एक और एक की मदद ली, अपने ट्राइबल आदमी, एक लीडर थे अल-अशात इब्न कैस, वो अपने लोगों के ट्राइबल लॉयल्टी के चक्कर में उनके साथ जंग हो रही है, तो उन्होंने भी अभी जियाद को अटैक किया। Ziyad radiallahu anhu managed to send news to the predicament to Muhajir and Ikrama. The two based on Abu Bakr's order was already on their way। अब आप देखेंगे ये छोटी सी एक झगड़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो रही है। And sadly, these are all among the believers। The two based on Abu Bakr's order were already on their way, but now given Ziyad's predicament, the mission took on an air of great urgency। अब ये urgent matter की शक्ल ले चुका है। Muhajir radiallahu anhu realized that if they continue to march at the present place, they would probably not be able to arrive in time to save Ziyad radiallahu anhu and his men। So leaving Ikrama radiallahu anhu in charge of the infantry, Muhajir radiallahu anhu set out quickly with a contingent made up primarily of horsemen। अब इनको पता चल गया कि ये emergency की situation है, तो जो on foot थे उनको उन्होंने separate कर दिया और इकरामा को ऑन फुट वालों के साथ रख दिया, और मुहाजिर तो थे वो हॉर्समैन के साथ दौड़े। He reached the area of the conflict just in time and was able to break the siege and save Ziyad radhiyallahu anhu and his men। And सही वक्त पे अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा दिया, उन्होंने जियाद को और उनके फॉलोअर्स और उनके मेन को बिइज़्निल्लाह बचा लिया। Al-Ashad and his followers from the Kinda tribe fled and sought sanctuary in the An-Nujair fortress. With Muslims pursuing them, the besiegers became the besieged। Al-Ashad and his followers were soon surrounded on all sides after Ikrama and his men arrived। अब ये जो है आपस में इनकी जब भिड़ंत हुई, तो उसके बाद अल-अशाद ऑफ कोर्स डिफीट हो रहे थे और वो अपने फॉलोअर्स के साथ एस्केप करके भागे। जैसे ही उन्होंने भागा, वो उन्होंने एक जगह पर जहां पर उन लोगों ने सैंक्चुरी में वो शेल्टर लिया था, उसको इकरामा के लोगों ने सराउंड कर दिया एंड उन लोगों को पकड़ लिया। One of the first thing Muhajir radiallahu anhu did was to invite the people of Kinda to Islam। Again the same thing is happening। उन्होंने किंदा के लोगों को वापस से दीन की तरफ दावत दी। Various sub tribes of the Kinda tribe were scattered all over। अब किंदा के जो लोग थे वो बहुत फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, प्लेन्स में, माउंटेन्स में। Muhajir radiallahu anhu ordered his men to fight against those who refused to embrace Islam। Again the same principle, जिन्होंने दीन को कबूल कर लिया उनके लिए पीस का जो मैसेज है वो है कि भाई आप आराम से पुरसुकून रह सकते हैं, और जो रिजेक्ट करते हैं उनके लिए फिर फाइट का एक ऑप्शन रह जाता है। Once that mission was completed, the only remaining members of Kinda tribe that had not been dealt with were those that were besieged in Al-Nujair fortress। अब Al-Nujair fortress में जो थे बस वो ही किंदा के लोग बचे हुए थे, बाकी जो थे उनका मामला सेटल हो गया था। They had no hope of escape, for the combined forces of Ziyad radiallahu anhu and Muhajir's armies consisted of more than 5,000 fighters, including men from the Ansar and the Muhajirun। यानी ये जो मुहाजिर की आर्मी थी, combined forces, ये तकरीबन 5,000 फाइटर्स की थी, ये combined forces of Ansar and Muhajirun। Cut off from the outside world, people inside the fortress started complaining because they had no food, rather they starved
they would rather surrender. अब ये fortress में इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो गया था. Of course they need food for survival. तो उन्हें पता था कि अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे या सरेंडर नहीं करेंगे तो हम भूखमरी से मर जाएंगे. तो it is better that we surrender. The leaders inside the fortress agreed that Al-Ashad should go out and negotiate terms of surrender on their behalf. They picked the wrong man. It has established in many narrations that Al-Ashad negotiated safe passage only for himself and a group of 7 to 10 men. अब आप देखें another personality trait इधर हमें पता चल रही है कि कैसे कैसे टाइप के मुख्तलिफ लोग होते हैं. अल-अशाद जो है, लोगों ने कहा कि अल-अशाद जो है वो उनके बिहाफ में जाके नेगोशिएट करेंगे टर्म्स ऑफ सरेंडर. अब अल-अशाद जो है वो रॉन्ग आदमी को उन्होंने सिलेक्ट किया. क्यों? क्योंकि अल-अशाद बिलोंग्स टू अ कैरेक्टर जो कि बहुत सेल्फिश है. वो सिर्फ अपने पैसेज के लिए बात कर रहा है और अपने साथ कुछ 7 और 10 लोगों के बारे में बात करने वाला है. यानी ही इज द काइंड हु इज अ सेल्फिश पर्सन, विकेड पर्सन. वो लोगों का खैर नहीं सोचता, वो आम लोगों का खैर नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना और अपने चंद लोगों के लिए ही नेगोशिएट करने जा रहा था. Perhaps he did not insist that everybody's life be spared, or perhaps he didn't ask that their lives to be spared in the first place. यानी उसने औरों की बात और जिक्र किया ही नहीं. Whatever the case, the Muslims stipulated that in order for a small group to be saved, the gates of the An-Nujar fortress had to be open. As a result of the deal, 700 people inside the fortress, because of their apostasy and their actions against Ziyad radiallahu anhu and his men, were killed. अब आप देखें कि ये जो है, because Al-Ashad was not a good leader, I mean, forget the leader, not a good person, उसने उनके बिहाफ में ना तो नेगोशिएट किया, ना उनका जिक्र विक्र किया. और इससे ये हुआ कि वो जो अल-नुजैर फोर्ट्रेस था उसका गेट ओपन कराया गया और तकरीबन 700 लोग जो थे वो अपने कुफर, अपने मुर्तद होने की वजह से मारे गए. The price they paid had been likened by historians to what happened years earlier to the members of Jewish tribe of Banu Qurayza. And this is somewhat similar to what had happened. यहूद की जो एक ट्राइब थी बनु कुरैदा, उसकी याद दिला रहा है. As a result, apostasy was completely eradicated from Kinda territory. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किंदा टेरिटरी से बिल्कुल भी ये जो कुफर और मुर्तद जो चीज थी वो खत्म कर दी गई थी. Ikrama ibn Abu Jahl radiallahu anhu headed back to Al-Madina, taking prisoners and 1/5 of the spoils. उसने जितने भी जो prisoner of the war थे उनको लिया और 1/5 of the माल गनीमत जो वो भी collect किया. One of the prisoners was Al-Ashad ibn Qais, who was detested by his people, especially their women, because of the deal he struck. The women of his tribe named him the traitor. अल्हम्दुलिल्लाह अल-अशाद जैसे लोग भी पकड़े गए और लोग जो थे उसको बहुत भला बुरा कह रहे थे. इनफैक्ट औरतें जो थी उसको, उसकी ट्राइब की, उसको गद्दार के नाम से जाना करती थी. When Al-Ashad was brought before Abu Bakr radiallahu anhu, the latter asked, "What do you suppose I will do with you, given your knowledge of the things you have done?" अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उससे बात कर रहे हैं अल-अशाद के साथ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, हमें पता चला है कि तुमने जो जो चीजें खुराफातें की हैं. Al-Ashad replied, "You will show me mercy, you will break off my shackles, and you will marry me to your sister, for indeed I have returned, repented and embraced Islam." Look at this man, how cunning he is. ये क्या कह रहा है? कहता है कि आप मुझे मर्सी दिखाएंगे, आप मुझ पे रहम करेंगे, आप मेरे जो ये बेड़ियां हैं उसको खोलेंगे और आप मेरी शादी अपनी बहन के साथ करेंगे क्योंकि मैंने दीन को, इस्लाम को कबूल किया है और माफी मांगी है. The reason he asked for the hand of Abu Bakr's sister in marriage is that months or years earlier he had proposed to her, Farwa bint Abu Quhafa radiyallahu anha, during his visit to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. यानी पहले कुछ महीनों सालों पहले इन्होंने इनकी बहन को ऑलरेडी बहन के रिश्ते के लिए प्रपोज किया था, जिनका नाम फरवा बिन्त अबू कुहाफा रदियल्लाहु अन्हा है. तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam married her to him, but stipulated that he could not take her with him only after returning to Al-Madina a second time. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह करा दिया, बट उनसे कहा था कि जब ये दोबारा से मदीना आएंगे तब रुखसती होगी. Soon thereafter the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died and Al-Ashad committed his crimes. अब ऐसा हुआ कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और इसने जो है ये Al-Ashad ने बहुत सारे खुराफात काम कर लिए. After Al-Ashad made his plea, Abu Bakr radiallahu anhu said, "I will do as you say, I will show you mercy." After which he married him off to Farwa radiallahu anha, perhaps motivated primarily by the Prophet's promise to conclude the marriage agreement after Al-Ashad returned to Al-Madina. In spite of his crimes, he did repent and return to Islam. Afterwards, Al-Ashad remained in Al-Madina until the Muslim conquest of Iraq. देखिए,
अभी तक हमें लग रहा था कि शायद अल-अशात would not improve himself या will not prove himself as a good person, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने ये रिक्वेस्ट की अबू बकर से रदियल्लाहु अन्हु से, अबू बकर ने क्या किया, उन्होंने उसको मर्सी दिखाई और अपनी बहन का उसके साथ निकाह किया, मेनली बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि जब सेकंड टाइम ही विल कम टू अल मदीना तो इनका जो है निकाह है वो कंज्यूमेट हो जाएगा, एंड बिकॉज उसने माफी मांगी, इस्लाम में दाखिल हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही स्टेड इन अल मदीना, और तब तक वो था जब तक मुस्लिम ने इराक को कब्जे में ना कर लिया था, यानी मुस्लिम्स कॉन्क्वेस्ट इराक. According to one account, when Al-Ashad feared that he would not be pardoned, he said to Abu Bakr radiallahu anhu, think well of me, free me, pardon me, accept my Islam, and do with me as you have done to others who are like me. Pardon me because I have returned to Islam, and return to me my wife. You will find that I am the best among my people in terms of my support for Allah's religion. And it is reported that Abu Bakr replied. अभी जैसे उसको एक पॉइंट पे यकीन हो रहा था कि शायद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उसे पार्डन नहीं करेंगे, तो वो बार बार अपनी दलीलें पेश कर, कहते हैं मेरे बारे में अच्छा गुमान रखो, मुझे आजाद करो, मुझे माफ करो, मैंने दीन एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरे साथ वही मामला करो जो आप औरों के साथ करते हो, और मुझे मेरी बीवी लौटा दो, और मैं इंशाल्लाह अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं अल्लाह के रिलीजन को सपोर्ट कर रहा हूँ. इस पर अबू बकर ने कहा, गो फोर्थ इन सेफ्टी एंड लेट मी हियर गुड थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. उन्होंने कहा तुम्हारे लिए हिफाजत है और आगे से मुझे अच्छी खुशखबरियां या अच्छी न्यूज़ तुम्हारे बारे में सुननी चाहिए. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु spared the lives of the rest of the prisoners as well because they repented and returned to Islam. यानी उन्होंने माफी मांगी, जितने दूसरे प्रिजनर्स भी थे उनको भी आजाद कर दिए क्योंकि उन्होंने माफी मांगी और वो दीन में शामिल हो गए. And he distributed among the people the 1/5 of the spoils that Ikrama radiallahu anhu had brought back with him. और यही नहीं, उनको माफी और आजादी के साथ साथ उनको माल में भी हिस्सा दिया. वो जो 1/5 1/5वां हिस्सा जो उन्होंने लाए थे इकरामा ने, उसमें से भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया. अ वेरी गुड लीडर, अ वेरी गुड खलीफा. किस तरीके से वो अपने मामलात सॉल्व करते थे, कोई ईगो, कोई मसले मसाइल, कोई परेशानी नहीं, एवरीथिंग इज सॉर्टिंग आउट इन अ राइट मैनर. A group of evil young women. After hearing about the death of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, a group of evil young women in Yemen, some Jews and apostates, spent nights celebrating his death by rubbing henna onto their hands, playing musical instruments, singing songs, and committing lewd activities with equally immoral partners. चंद यंग औरतें थी यमन में, जैसे ही इनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ की खबर पहुंची, इन्होंने क्या किया, ये सेलिब्रेट करने लगी. कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं, हिना लगा रही हैं हाथों में, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हैं, गाने गा रही हैं और कुछ बदकारियों वाली हरकतें कर रही हैं. Like the women who showed up for the battle of Uhud singing songs to encourage their fighters, these women urged the apostates to wage war against Islam. They were unlike the moral and chaste women of the religion who fought for the Muslims. यानी ये वही औरतें थी जो कि बैटल ऑफ उहद में भी गाने गा रही थी और एनकरेज कर रही थी लोगों को इस्लाम के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, और ये वो वाली नेक औरतों में से नहीं थी. ये क्या थी, ये काफिर्स थी और ये मुर्तद थी. There were somewhere between age 23 and 29. इनकी जो एज गैप्स था 23 साल से लेकर 29 साल के बीच की औरतें थी ये. And they began an apostate movement that appealed to the decadent upper classes of Arab society and local Jews. यानी ये एक ऐसा मूव उन्होंने चालू किया था या ऐसा ग्रुप उन्होंने बनाया था जो कि अपर क्लास ऑफ अरब सोसाइटी और ज्यूइश सोसाइटी को अपील कर रहा था. Both the groups stood to gain if Islam was eradicated from the region. The most famous of those women was Hur bint Yamin. इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग औरत थी, जो बहुत ज्यादा यू कैन से द लीडर या फेमस थी इस ग्रुप में, उसका नाम था हुर बिन्त यमीन, who was notorious for her lewd acts to such a degree that an Arabic expression was coined because of her. More of a whore than hur. Allah. यानी इसकी हरकतें इतनी वाहियात थी, ये बिल्कुल बदजात औरत थी, और इसीलिए उसके ऊपर एक्टिव, इसके लिए जो अरबिक एक्सप्रेशन आया था कि उसका नाम तो था हुर, मगर उसको यानी वो गंदी औरतों का टाइटल दिया जा रहा था. She was not considered as a normal good human, as a normal good woman, but उसको जो गंदी औरतें होती है, बाजारू औरतें, उसके साथ कंपेयर किया जाता था और उसके बारे में एक ऐसा यानी एक स्टेटमेंट बनाया गया था कि वो हूर नहीं है, वो कोई और है. यानी when news of the woman reached Abu Bakr radiallahu anhu, he wrote to his governor Muhajir ibn Abu Umayyah radiallahu anhu, instructing him to deal with them. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, अपने गवर्नर को लेटर लिखा कि इनसे डील करो. और who was the governor? Muhajir ibn Abu Umayyah radiallahu anhu.
The text of the letter called for swift action. When this letter of mine reaches you, go to those women. Cut off their hands. If someone tries to defend them, explain the situation to him to establish a proof. And let him know how severe a sin he is perpetrating by preventing you from punishing those women. If he moves out of your way, then accept that from him. Do not harm him. But if he refuses, then fight him. Ekdam simple, straight ilaj. Again, I would like to mention here कि जैसे अभी मैं I'm relating matters मसलन जहाँ पर cutting of hand और ये और वो है, तो इसमें है ना हमारा जो एक reaction या हमारा जो एक normal human trait है ना, वो इस तरीके से नहीं लाना चाहिए कि ओ ये तो जुल्म है, ये तो barbaric है. You have to consider जहाँ पर इस्लाम is talking about mercy and being very very kind, वहीं पर ही certain aspects होते हैं जहां पर थोड़ी सख्ती भी है, यानी नरमी एंड सख्ती का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, और ये जो मैटर्स है ना, इसको कई बार इस तरीके से हैंडल करना पड़ता है जहां पर जिस इंटेंसिटी का गुनाह या गुनहगार होता है उस इंटेंसिटी की उसकी सजा मुअय्यन होती है. मसलन इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैजिक, ओके, पीपल हु आर इनटू मैजिक एंड सॉर्सरी, तो जो उसका शरिया कानून है कत्ल, मुर्तद का कत्ल. The people who are married people who are into fornication, okay, जो बदकारियां करते हैं शादीशुदा लोग, प्रूफ हो जाता है तो उसका रजम. तो ये सारी जो, और उसके बाद चोरी का जो है हाथ काटना है, और ये सारी चीजों का जो कानून बनाया गया ना, शरिया कानून, इसमें हम लोग जो है ना वो मगरिबी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए. We shouldn't think this as a barbaric treatment. We should think it as an adl, क्योंकि जिसके ऊपर ये जुल्म होता है ना, जिसके अगेंस्ट में ये खुराफात की जाती है, उसको मद्देनजर रखते हुए और ओवरऑल फॉर द सोसाइटी टू बी क्लेंस्ड एंड प्यूरिफाइड, इस वजह से ये डिसीजंस लिए गए हैं, और इस वजह से ये अल्लाह का कानून है नंबर 1. तो हमारा जो एटीट्यूड है वो समयना व अताना वाला कानून है. हमारा जो दिल का मामला है वो इस तरीके से बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ मगरिबी सोच के ओ ह्यूमन राइट्स एंड दिस एंड दैट. दिस इज टोटली रॉन्ग. ओके, सो आप भी यानी उसको उसी एंगल से देखेंगे, एंड दैट्स व्हाई आई कीप reminding and I keep mentioning whenever we come across anything like that. So similarly, Abu Bakr radiallahu anhu, thinking on the same lines, what he said, he told to Muhajir ibn Abu Umayya radiallahu anhu कि आप जो हैं आप इधर जाएं और स्विफ्टली इस मूवमेंट को या इस मिशन को एक्शन में डालें. कट ऑफ द हैंड्स ऑफ दिस वुमन. ओके, अगर कोई इनके डिफेंड करने के लिए कोई खड़ा होता है, उसको आप अच्छी तरह से प्रूफ दीजिए और समझाइए कि कितना बड़ा गुनाह और सिन ये औरतें कर रही हैं. अगर वो समझ जाता है तो डोंट हार्म हिम, अगर वो नहीं समझता है तो यू हैव टू फाइट हिम. The punishment that Abu Bakr described was one in Islam. See, he is not doing anything from his own whims and fancies. वो अपने दिमाग और desire से नहीं कर रहे. He is only following the Sharia Qanon, which is led by or which is directed by Allah Azza wa Jal and by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usually meted out to highway robbers and others who threatened the safety and security of the Muslim citizens. The women also threatened the safety and security of the Muslim society in a different but more dangerous manner. यानी ये जो है, जो चोरी का जो मामला होता है और जो मुस्लिम उम्मा की सिक्योरिटी को जो थ्रेट होता है, उसकी सजा है. लेकिन ये औरतें जो कर रही थी, ये चोरी से भी कहीं गुना ज्यादा गुनाह था, बिकॉज ये भड़का रही हैं, ये गंदगी फैला रही हैं, ये लोगों को जो है ना गलत राह पे ले जा रही हैं. तो दिस इज इवन मोर थ्रेटनिंग एंड डेंजरस फॉर द सोसाइटी. Having read Abu Bakr's letter, Muhajir radiallahu anhu gathered all available horsemen and foot soldiers and traveled to the evil woman. A group of men from the Kinda and Hadramaut tribes stood between Muhajir's men and the guilty woman. Muhajir radiallahu anhu, obeying Abu Bakr's instruction, explained the matter to them as plainly as he could. Most of them moved away of his way, but some insisted on fighting. These men were quickly defeated. The guilty women were caught and their hands cut off. As a result, some died, while the survivors went to Kufa. They received appropriate punishment for their evil deeds. Alhamdulillah. And exactly वैसे ही हुआ जैसा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का इंस्ट्रक्शंस था. जैसे ही वो उधर पहुंचे तो कुछ लोग थे किंदा और हदरमौत ट्राइब के जो खड़े हो गए बीच में. अगेन मुहाजिर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको एक्सप्लेन किया, काफी सारे जो है वो मूव आउट हो गए, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया. कुछ लोग जो थे वो लड़ने के लिए तैयार हुए, उनके साथ लड़ाई हुई, उनको हराया गया. ये जो गिल्टी औरत थी उनके हाथों को कट कर दिया गया. कुछ औरतें जो थी वो मर गई, कुछ जो थी वो कुफा में चली गई, एंड पनिशमेंट उनकी जो इविल डीड्स थी उसकी मिल गई. अल्हम्दुलिल्लाह. In a similar incident, Abu Bakr radiallahu anhu learned that another woman had also celebrated the Prophet's death by singing songs insulting him. Abu Bakr radiallahu anhu was informed that Muhajir had already punished the woman by cutting off their hands and pulling out her front teeth. Abu Bakr radiallahu anhu wrote back saying that even though it was too late, he thought that Muhajir radiallahu anhu had been too lenient. Abu Bakr radiallahu anhu told Muhajir,
radiallahu anhu that if she had been a Muslim, she was guilty of apostasy and deserved a more severe punishment. And if she had been a non-Muslim who lived under Muslim rule by agreement, she was guilty of the crime of al-hiraba, threatening the security of Muslim citizens, and treason, since she had agreed to be loyal to the Muslim nation. So for both crimes, she deserved to be executed. एक सिमिलर इंसिडेंट में और दूसरी जगह पर भी कुछ औरतें थीं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ को सेलिब्रेट किया था बाय सिंगिंग सॉन्ग्स एंड इंसल्टिंग हिम. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने मुहाजिर को सेम चीज के बारे में कहा कि आपको लीनियंसी नहीं दिखानी है. अगर ये मुस्लिम होती भी तो भी बहुत सीवियर गुनाह है ये, और अगर ये नॉन मुस्लिम है तब भी ये बहुत सीवियर गुनाह है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. एंड द क्राइम ऑफ अल हिराबा का मानी हुआ कि थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम सिटीजन्स, एंड इन्होंने दगाबाजी की है. तो ये दोनों क्राइम की वजह से उनके साथ यही मामला होना है, which is again cutting off their hands, and in some places it is also pulling out the front tooth. Winning hearts and minds. Once the wars against the apostates ended, Abu Bakr radiallahu anhu needed to make sure that it was never reared its ugly head again. Showing true foresight, Abu Bakr radiallahu anhu started a process of healing past divisions and uniting the people under the banner of Islam. जैसे जैसे ये wars का सिलसिला खत्म होता गया, फिर उन्होंने make sure किया कि ये जो दोबारा से ये वाला जो मामला है वो वापस से दोबारा से सर ना उठा सके, और फिर उसके बाद सब लोगों को यूनाइट करने लगे under the banner of Islam. This was a monumental task. Although the Arabs were one people in terms of their shared languages and culture, they were broken up into different tribes and sub-tribes. Many thought that tribal loyalty mattered more than anything else. I mean, we all know that कि ये अरब कल्चर का एक हिस्सा है कि ये इनकी ट्राइबल लॉयल्टी जो है वो सबसे ऊपर आती है, हर किस्म की लॉयल्टीज के ऊपर इनकी ट्राइबल लॉयल्टीज आती है. तो जो ये टास्क अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने लिया था कि ही इज ट्राइंग टू यूनिफाइंग एवरीवन, सबको एक बैनर के नीचे लाना था. कहने के लिए तो एक ही लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है और सारा कुछ सिमिलर है, बट ये ट्राइब्स और सब ट्राइब्स के अंदर बटे हुए थे. To soften the hearts of the various tribal leaders of the region, Abu Bakr radiallahu anhu forgave them once they returned to Islam. He had used force against them to achieve two main goals: showing them the strength, power and determination of the Muslim nation, and sending a clear message that it was in their best interest to return to the religion. अब दो चीजें थी जिसके बारे में उन्होंने ट्राइबल लीडर्स के दिल में अपनी जगह कैसे बनाई. पहले तो उनको माफ कर दिया, जो भी यानी दीन इस्लाम कबूल करने से पहले जो भी खुराफातें हुई, गलतियां हुई, उसको माफ कर दिया. दूसरा, उनको वो बताना चाहते थे कि मुस्लिम नेशन की ताकत क्या है, पावर क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, और फिर उनको एक अच्छा मैसेज देने थे कि आप अगर दीन के अंदर आ जाते हो, उसके रिलीजन के फोल्ड के अंदर आ जाते हो, तो आपके लिए क्या क्या नेमतें और क्या क्या इंटरेस्ट होंगे. Abu Bakr radiallahu anhu also allowed them to wield some power and influence over the members of their tribes because this benefited the young Islamic nation. Many of the tribal leaders who had apostatized had good qualities. Consider, for instance, the example of Amr ibn Ma'adi Karib and Qais ibn Yaqut al-Muradi. These two men were not only influential and popular among the people of their tribes, but were very brave and steadfast during battle. Not wanting to lose them, Abu Bakr radiallahu anhu tried to convince them that it was in their best interest to waver between Islam and disbelief, and that the only way in which they can achieve success in this life and hereafter was to be sincere to their religion. अभी इसमें चंद ट्राइबल लीडर्स ऐसे थे जो कि मुर्तद थे मगर वो अच्छी क्वालिटीज पोजेस करते थे. तो इसमें दो एग्जांपल्स दिए हैं, अमर इब्न मादी करीब और कैस इब्न यगूत अल-मुरादी. ये जो थे ये बहुत ब्रेव थे और बैटल्स के मामले में बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे, स्टेडफास्ट थे. तो इनको अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु खोना नहीं चाहते थे, तो उनको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके लिए, उनकी दुनिया और आखिरत के लिए जरूरी है कि वो दीन पर पलट आए और इस्तिकामत अपनी दिखाएं. When Amr was brought as a prisoner to Al-Madinah, Abu Bakr radiallahu anhu said to him, "Does it not make you miserable to think how every day if you oppose us, you will suffer either defeat or imprisonment?" उन्होंने यानी एकदम क्लियर अल्फाजों में से कहा कि आपको ये अजीब नहीं लगता सोचकर कि हर रोज आप हमारे सामने लाए जाओगे, आप या तो जंग में हमारे साथ हारोगे या फिर आप हमारे साथ एक मुजरिम बनके हमारे सामने होगे, बट अगर आप इसके बदले रिलीजन को सपोर्ट करोगे तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेंगे. Amr replied, "Yes, that is certainly true. I will indeed do as you say, and I will never again return to apostasy." एंड अल्हम्दुलिल्लाह अमर जो थे वो अग्री करके कहते हैं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ जो आपने कहा, मैं दोबारा से दीन से बाहर नहीं जाऊंगा, एंड आई विल स्टे ऑन दी पाथ ऑफ दीन. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको आजाद कर दिया. अमर विच वाज अ वाइज डिसीजन एंड वन दैट बेनिफिटेड इस्लाम ग्रेटली. यानी अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के फिर ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ.
Amr, may Allah have mercy on him, true to his word, never again rejected Islam and became a good practicing Muslim. एक बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए. Just 1 second, guys. Okay, sorry guys. Okay, after that he never returned. After that he never returned in the opposite direction. And then he showed great bravery in the battles Muslim fought over subsequent years. Qais ibn Yaqut also deeply regretted the role he played during the apostate wars, and so Abu Bakr radiallahu anhu forgave and freed them. Even Qais ibn Yaqut जो दूसरा बंदा था उसने भी बड़ा अफसोस जाहिर किया and then वो भी इस्लाम के फोल्ड में दाखिल हो गया. Abu Bakr radiallahu anhu's merciful and forgiving attitudes was well received by the tribes of the two men. So having conquered the apostates on the battlefield, Abu Bakr radiallahu anhu also managed to conquer their hearts and minds and to show them the greatness of Islam. अब आप देखें कि सिर्फ अपनी ताकत या muscles flex करने से strength दिखाने में कोई कमाल नहीं है. He also managed to conquer their hearts by showing mercy and by forgiving them. So this had a greater impact and this showed the greatness of Islam. They in turn were at the forefront of wars in which they conquered new lands and with the lessons learned from Abu Bakr radiallahu anhu were able to convert their inhabitants. Now since they were the leaders, ये खुद tribal leaders थे और इनके under जितने लोग थे फिर इनसे influence होकर when they saw that the positivity of coming into the fold of Islam helped them a lot, so they were successful to convince their inhabitants also. इस तरीके से फिर यानी लोगों के दिलों में भी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु राज करने लगे. So alhamdulillah, we have completed the chapter here. Any questions you have? Do we have any questions? Please open forum. Otherwise, we'll be packing up for today. All right. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Inshallah, we'll catch up tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.